Namaste to all my dear children. So in this video we will do 5 questions of 13.2. Okay, so let's start. And these all questions are based on right circular cylinder, the surface area of right circular cylinder. So please go and watch the video of part 4. वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है. So the first question is, the curved surface area of a right circular cylinder of height is 14 cm is 88 cm square, which means the curved surface area of the cylinder is given, that is 88 cm square, and also we have given the height of the cylinder, that is 14 cm. So we all have to write all the given things. हमेशा जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपको गिवन पार्ट्स लिखना ज़रूरी होता है. So you can also make your cylinder. फिगर बनाना is must in your word problem. ठीक है, तो जब फिगर बनाएंगे so we got the height of the cylinder, that is 14 cm. यहाँ पे हमें height given है और हमें इसका यहाँ पे curved surface area given है. The question is saying find the diameter of the base of the cylinder. So diameter के लिए what you have to do, you know the formula for diameter is this is the twice of radius. ठीक है, यानी कि हम पहले कर्व सरफेस एरिया यूज़ करके वी विल गॉट द रेडियस. पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द डायमीटर. सो कर्व सरफेस एरिया, यू नो द फॉर्मूला फॉर द सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच. वेरी गुड, 2 पाई आर एच. इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें. So 88 cm square is given for curved surface area. When 2 into, you have to take the value for pi, so you can take 22/7 into radius हमें find करना, and height is given 14 cm. So here you can say that 7 ones are 7 twos are cancelled. So now transpose all the things, so you will get 88, and in denominator it will be 2 into 22 into 2, which is equals to radius. So we know that this all will be equals to 88 only radius. So 88 ones are 88 ones are. So basically what is your radius here? Your radius is 1 centimeter. You got your radius. Now it's time for diameter. So diameter is what? Twice of radius, so which is 2 into 1 centimeter, which is equals to 2 centimeter. That's all. बहुत simple question था ये. ठीक है. Now question number 2. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 cm from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? Very easy. Now you know the closed cylindrical tank है. Suppose करिए closed cylindrical tank है, यानी कि दोनों साइड से closed है, bottom से top and bottom दोनों साइड से, and the height is given 1 meter. बेस डायमीटर, ये हमारा डायामीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर. तो अगर आप यहाँ पे रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस विल बी द हाफ ऑफ डायमीटर, मीन्स 140/2, सो विच इज 70 सेंटीमीटर. ओके, अब आप ये देखिए यहाँ पे हाइट गिवन है मीटर में. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कन्वर्ट 1 मीटर को आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप 70 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में. बट योर आंसर शुड बी इन स्क्वायर मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है. ठीक है, तो अब लास्ट में एरिया को कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो लेट्स राइट इसको मीटर में ही करते हैं. 0.7 मीटर एंड दिस विल बी 1 मीटर एज इट इज़. ठीक है, नो नीड फॉर कन्वर्शन. सो नाउ अब ऑब्वियसली हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ये क्लोज्ड है और हमें पूरा इसको कवर करना है. सो विल फाइंड द टोटल surface area, ठीक है, of the cylinder, and we know the formula, that is 2 pi r and in the bracket h plus r. ठीक है, so now let's write 2 into pi, we can take 22/7. your radius is 0.7 and in the bracket it is 1 plus 0.7. so here it will cancel, 7 ones are 7, 0.1. so now multiply, you will get 4.4. जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे और ब्रैकेट से आपको मिलेगा 1.7. ठीक है, अब तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 7.48 मीटर स्क्वायर. ओके,
So therefore you can say that 7.48 meter square, it's not 40, it's 48 meter square metal sheet is required to make the closed cylindrical tank. Closed cylindrical tank. ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन. अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस. ये मेटल पाइप है जिसकी हमें इन्होंने एक जो लंबाई, लॉन्गनेस लंबाई दी है, बेसिकली वो क्या होगा, इसकी हाइट होगी 77 सेंटीमीटर, विच इज बेसिकली दी हाइट. ओके. नाउ इनर डायमीटर of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter is being 4.4 centimeter. अब पता है इससे क्या आपको समझ आ रहा है, जैसे अगर यहाँ पे सपोज करो मैं आपको ये ऊपर का पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इनर और आउटर आपको कैसे समझ आएगा. जैसे कोई मेटल का पाइप है तो वो ऊपर से कुछ ऐसा दिखे, इसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है. इस थिकनेस में अगर मैंने ये सर्कल फाइंड किया तो ये इनर डायमीटर है, अगर मैंने ये किया, ठीक है, ये बाहर का सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, ये आउटर डायमीटर होगी. तो ये है इसका मतलब कि हमें यहाँ पे दो डायमीटर्स हैं, इनर एंड आउटर, और यहाँ पे जो पाइप की लेंथ है वो 77 सेंटीमीटर है. तो पहले हमें फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. सो फॉर फर्स्ट पार्ट वी विल यूज द इनर रेडियस. ओके. सो यू कैन राइट हेयर द इनर रेडियस, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर गिवन है. सो इनर रेडियस, लेट्स use small r for inner radius. So that is 4 centimeter ना. So 4 upon 2 which is 2 centimeter. ये equals to sign है. Now we have to find the inner curved surface area. So inner curved surface area will be 2 pi r h. So 2 into 22 upon 7 सब सेंटीमीटर में, so no need any change, क्योंकि सब में आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो. 7 11 77. नाउ मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स. 22 4 44 इंटू 88. 88 को 11 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपको इनर रेडियस मिल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द आउटर रेडियस. ओके. ये इनर कर्व सरफेस एरिया. अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है outer curved surface area. उसके लिए you need outer radius. So outer radius means 4.4 is the diameter. So we will divide it by 2. You will get 2.2 centimeter. Okay, 2.2 centimeter. So now we will use the same formula 2 pi RH. तो उसके लिए आप वही कंडीशन अप्लाई करेंगे for the outer curved surface area. 2 पाई. अब मैं इनर आउटर के लिए कैपिटल आर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, रेडियस के लिए. सो कैपिटल आर इंटू एच. सो सेम थिंग 22 अपॉन 7 इंटू 2.2 इंटू 77. दिस विल बी कैंसल्ड, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. सो इनर कर्व सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया हमें बहुत ईजिली मिल गया. नाउ द क्वेश्चन सेइंग टोटल सरफेस एरिया. हमें इसके मेटल पाइप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब ये बाहर का जो टोटल है और जो इनसाइड का है, ठीक है, दोनों इनर आउटर दोनों हमें सरफेस यूज़ करने हैं. तो आप पता है इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं. फॉर टोटल सरफेस एरिया, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको एक आप शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते हो. देखिए जैसे ये पाइप था आपका, ठीक है, इसका ऊपर का सेक्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनर और आउटर कर्व सरफेस है, मतलब ये आउटर का हमने सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, और इनर की बात करेंगे तो इनर से भी फाइंड कर लिया. तो बेसिकली सिर्फ यही वाला पार्ट तो रह गया हमारा सरफेस एरिया जो हमें फाइंड करना है, ये वाला पार्ट. और नीचे से अगर आप बात करेंगे जो बॉटम है, बॉटम में भी कुछ ही ऐसा ही दिखेगा, यानी कि हमें ये वाला सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आपका इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस, यानी कि जो
इनर, ये जो बिगर सर्कल है इसका एरिया माइनस दिस स्मॉलर एरिया करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो पाई बिगर वन, बिगर रेडियस स्क्वायर माइनस पाई स्मॉलर रेडियस, सो वी विल गॉट दिस एरिया। और हमें यही तो चाहिए क्योंकि यहाँ से तो ये हॉलो है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने आउटर सरफेस का एरिया फाइंड कर लिया और अंदर से इनर का फाइंड कर लिया है। तो मीन्स अगर हमने सिर्फ ये फाइंड कर लिया टॉप के लिए और बॉटम के लिए, and we will add all the surface area, so we will get the total surface area। ये बेसिकली ये कहा जा रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ टू एजेस, जो एजेस हैं इस पाइप के, एजेस ऑफ द पाइप, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे सर्कल्स है ना, दो एजेस हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का आउटर, इसका भी आउटर और इसका भी आउटर यूज होगा, माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर दोनों का। सो 2 पाई इज कॉमन इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जब आपको इनर सर्कल आउटर सर्कल का क्वेश्चन होता था ना ऐसे करके, तो ये इनर होता है, ये आउटर होता है। अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द टोटल बिगर एरिया of the circle minus the smaller area of the circle। तो इस सेम वही प्रोसेस है इसका भी। now let's put all the values। so pi 22/7 into radius is 2.2 जो bigger radius था, ठीक है, and minus smaller radius is 2 का square। now find the values। so it will be 44/7 in the bracket 4.84 minus 4, so we will get 44/7 इंटू 0.84। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट, यहाँ से 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.12 एंड फाइनली योर आंसर विल बी 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी आ गई एरिया ऑफ टू एजेस। अब आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बताना है। सो फॉर टोटल सरफेस एरिया यू हैव टू ऐड inner curved surface area plus outer curved surface area and plus जो भी हमने area of two edges फाइंड किया है, area of two edges of the pipe, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर अब जो हमारा इनर जो एरिया था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर था, आउटर आया था 1064.8 और जो अभी हमने फाइंड किया वो है 5.28। जब आप सबको ऐड करेंगे सो यू विल गेट 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्योंकि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टोटल सरफेस एरिया बहुत आसान तरीके से आपने फाइंड कर लिया है, तो इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। See question number 4। The diameter of the roller 84 centimeter and its length is 120 centimeter। आपने रोलर देखा होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है वो, जब आप उसको रोल करते हैं ग्राउंड पे ऐसा रोलर होता है। तो इसकी डायमीटर मतलब ये जो डायमीटर है ये 84 सेंटीमीटर है और जो इसकी लेंथ है, लेंथ वी हैव गिवन 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल करना है तो सपोज करिए प्लेग्राउंड का पाथ है, तो यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। रोटेट होने पे ये 500 टर्न्स इसको लगते हैं तब जाके पूरा लेवलिंग होता है प्लेग्राउंड का। तो एक्चुअली में आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप ये सोचिए अगर मैं इसको मूव करती हूँ, इसको रिवॉल्यूशन इसका होता है तो कौन सा सरफेस एरिया यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली सिर्फ यही पार्ट तो यूज़ हो रहा है, इसका ये सर्कल का जो टॉप एंड बॉटम तो यूज़ नहीं हो रहा। तो मीन्स इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। इससे आपको ये समझ आ गया। और इसको पूरा रेवोल्यूशन में 500 टर्न्स लगते हैं, यानी जितना ये कवर करेगा प्लेग्राउंड का एरिया उसमें 500 टर्न्स लगेंगे। तो जब हम इसका 2 पाई आर एच करके इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, मीन्स टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जितना आपको समझ है मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे डायमीटर इज़ व्हाट 84, तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस विल बी 84
सेंटीमीटर अपॉन 2 विच इज़ 42 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लेंथ का बेसिकली क्या है, वो हाइट है। सो हाइट इज़ व्हाट 120 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में देखिए हमें आंसर मीटर स्क्वायर में देना है, तो कोई बात नहीं, हम लास्ट में चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ पे एरिया इसका फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन टेकिंग, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन टेकिंग 1 मीटर स्क्वायर। जो लेवल हो रहा है, लेवलिंग लिख देते, लेवल्ड इन टेकिंग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, जब एक रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। So you can say that is the curved surface area. So 2 pi RH, which is 2 into 22 upon 7 into 42 into 120. अब इसको सॉल्व करिए, 7 6 कैंसिल। अब जब सारा मल्टीप्लिकेशन, यू विल गॉट द आंसर 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया जब उसका एक रिवोल्यूशन हो रहा है, तो इसमें उसका ऐसा एरिया आएगा, मीन्स ये उसका एरिया है। उसने टर्न्स कितने लिए हैं, 500। फॉर दैट मीन्स जो टोटल एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड होगा, सो एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड विल बी दिस एरिया 31,680 will multiplied by 500. So you will get here 1584,000 centimeter square. Now you have to find your answer in meter square. तो इसको हम क्या करेंगे, 10,000 से मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे मीटर स्क्वायर में फाइंड करने पे आप इसको, ये बेसिकली ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, नॉट सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर कर दूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, द सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब सिलेंड्रिकल पिलर है, देखिए मैं हर क्वेश्चन में फिगर बना रही हूँ, तो ये मस्ट है कि आप फिगर ज़रूर बनाइए, इससे बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका डायमीटर इज गिवन 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 3.5 मीटर, मीन्स हाइट मीटर में है और डायमीटर आपका सेंटीमीटर में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। इसमें ऑलरेडी हमें बताया कि हमें सिर्फ इसके इस कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है एंड द कॉस्ट इज गिवन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए पहले रेडियस फाइंड करते हैं। सो रेडियस विल बी 50/2 विच इज़ 25 सेंटीमीटर, बट वी नीड इन मीटर। तो मीटर में यू कैन जस्ट divide it, so you will get 0.25 meter. So now curved surface area of the pillar 2 pi RH, बहुत easy है। So 2 into 22/7 into 0.25 into 3.5। यहाँ से आप 7 कैंसिल कर सकते हैं, you will get 0.5। अब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, here you will 44 into 25 5 125 होता है, so you will get 0.125। so finally your answer will be 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा आंसर आएगा जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब आपको कॉस्ट फाइंड करना है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंट 1 पर मीटर स्क्वायर का गिवन है ₹12, तो इसका क्या होगा 5.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ₹12.50। सो ये आंसर विल बी ₹68.75। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने इस एक्सरसाइज के इस वाली वीडियो में करवाए हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सिलेंडर पर बेस्ड, उसके सरफेस एरिया पे बेस्ड। सो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।